Hello everyone, welcome to the new class of biology. Uh, in yesterday's class, we discussed about the human respiration system and how does it work. I hope you had written the notes. तो जो रेगुलर नोट्स आप लोगों को लिखने के लिए कहा जाता है वो लिखते रहिएगा. जो डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम का, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो वो आप लिख लीजिएगा वो जो नोट्स हैं. The next topic is transportation. So इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने कुछ लाइफ प्रोसेस है इस चैप्टर का नाम. So definitely we had studied some life process from the starting. We had studied how nutrition occurs. We had studied how the digestion process occurs. We had studied how the digestion process is assisted by the respiration process, because energy is obtained from the respiration for digestion. Now we'll study how the digested food material or the different type of substances are being taken from one place to another in our body. हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह की तरफ how are the different particles being taken through. क्या तरीका हो सकता होगा हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट कराने का? The only way by which we can transport the food material or any type of substance in our body is with the help of blood, right? Blood एकमात्र तरीका है या फिर blood एकमात्र transportation medium है by which we can, especially humans can just take their food material from one place to another. I think you had studied about tissues. There are different type of tissues, right? One such type of tissue is the connective tissue. Connective tissue, which connects one particular substance to another, that is known as the connective tissue. So blood is a liquid connective tissue. दूसरा एक connective tissue का example अगर आप लोगों से पूछा जाए, I think you can see. Another example of a connective tissue is cartilage. अगर आप लोगों ने सुना है cartilage, पिछली क्लास में आप लोगों को cartilage के बारे में बताया था. It is in a throat, गले में मौजूद है cartilage, respiration में काम आता है. cartilage जैसा चीज जिसको आप wind pipe भी कह सकते हो, वो cartilage ही है. उसी तरह एक कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, बट इट इज इन द लिक्विड फॉर्म, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. मेनली टू पार्ट्स होते हैं ब्लड के अंदर. एक होता है प्लाज्मा पार्ट, दूसरा होता है कॉर्पसल्स पार्ट. प्लाज्मा पार्ट होता है लिक्विड वन एंड द सॉलिड पार्ट इज नोन एज द कॉर्पसल्स पार्ट. ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन is how blood plasma transports. See, blood plasma में जो खासियत रहती है, it is a liquid portion. So what it does, it just transports the food, carbon dioxide and different type of waste materials which is dissolved in it. जो खून में डिजोल्व हुए फॉर्म में रहते हैं, उन सबको ये ट्रांसपोर्ट कराने की कोशिश करता है, राइट? एंड ऑक्सीजन भी हमारे ब्लड में मौजूद है. उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए ब्लड प्लाज्मा काफ़ी रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं. ब्लड प्लाज्मा की खूबी ये नहीं है. Who does that? It is mainly done by the red blood corpuscles. Red blood corpuscles जो रहते हैं वो हमारे शरीर में मौजूद ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करते हैं. Why is it so? Why is the red blood corpuscles helping in the transportation of oxygen? In previous topic you had studied about a respiratory pigment. रेस्पिरेशन में आपने एक पिगमेंट का नाम पढ़ा था, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम पढ़ा था बाय द नेम हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा अगर किसी सेल्स में पाया जाता है तो वो कौन से सेल में है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स. तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स में हीमोग्लोबिन होने की वजह से ही इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसका ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, उस वजह से वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है. Okay, blood plasma helps in the transportation of different other materials, but red blood corpuscles helps in the transport of oxygen. Clear? Okay. अब हम पढ़ेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर, वो जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है. हार्ट का स्ट्रक्चर वी विल स्टडी इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, क्योंकि इसमें आई बिलीव रेस्पिरेटरी सिस्टम में उतना डायग्राम के साथ डायग्राम की हेल्प से बताने में ज़्यादा मुश्किल
कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बिकॉज वो तो सिंपल तरीके से एयर इनटेक लेने का प्रोसेस, एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज का प्रोसेस उतना ही है, उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है. बट इन केस ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, हर्ट के स्ट्रक्चर को दिखाकर एक्सप्लेन करने में थोड़ी आसानी रहेगी, इसलिए आई हैड मेड अ डायग्राम. So let's see how can we study the transportation process in case of human beings through heart. हम हार्ट के ज़रिए अपना ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कराते हैं, वो कैसे होता है, जस्ट लेट्स लुक इट थ्रू इट. Okay, let's get started about how the transportation of different substances takes place. कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन विद द हेल्प ऑफ हार्ट. थोड़ा वो बनाने की कोशिश की है, मैंने नहीं बनाया एक्चुअली. लेट मी बी फ्रैंक, ये मत समझना कि डायग्राम मैंने बनाया, मैं इतना बड़ा अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ. इट्स मेड बाय माय कज़न ब्रदर, मैं उनके साथ ही रहता हूँ अभी. एक्चुअली आई एम स्टेइंग एट केरला राइट नाउ, तो थोड़ा उसका एडवांटेज मिल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि एक तरफ से पॉजिटिव केसेस कम हो रहे थे, अभी धीरे धीरे करके पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं केरल में, लेकिन वाइड स्प्रेड नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा. इसके लिए थोड़ा अच्छा हो गया है जो वाइड स्प्रेड नहीं हो रहा है. सेकेंड बेनिफिशियल ये हो गया कि डायग्राम्स मुझे उतना ज़्यादा मतलब बना सकता हूँ, लेकिन अच्छी तरीके से मैं बना नहीं सकता. सो ये थोड़ा फ़ायदा मुझे मिल गया है कि मैं डायग्राम्स किसी से भी बनवा सकता हूँ. आप लोग ऐसा मत करिएगा, आप लोग अपने आप से ट्राई करिएगा. ये डायग्राम थोड़ा अच्छा बनवाने के लिए मैंने उनको दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बना सकता, बना तो सकता हूँ बट वो उतना क्लियर नहीं रहेगा. राइट, you will get the notes of this diagrams and all, so write the PDF regularly, write the notes from the PDF regularly. Okay, this is the heart and this helps in the pumping action of our ब्लड को पंप करा के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने के लिए, डिफरेंट पार्ट्स से पंप किए गए ब्लड को अंदर लाने के लिए मदद करने वाला एक पंपिंग मस्कुलर पंपिंग मशीन, उसे ये है वो जिसे हम कहते हैं हार्ट. राइट, वेयर इज द हार्ट प्रेजेंट? हार्ट इज प्रेजेंट इनसाइड आवर रिब केज. रिब केज में मौजूद है, हमारी छाती में मौजूद है. कितने साइज का हो सकता है? हम जितना अपनी मुट्ठी को मोड़ कर अपनी छाती के जस्ट बीचों बीच रख के देखें, उतने साइज का रहता है हमारा हार्ट. ओके, इट्स जस्ट अ साइज ऑफ आवर फिस्ट. राइट, सो इन केस ऑफ द हार्ट, अगर इसको तिरछा समझें, हार्ट इज ऑलवेज टिल्टेड, थोड़ा सीधा नहीं रहता है हार्ट. हार्ट हमेशा थोड़ा तिरछा रहता है, थोड़ा टेढ़ा हुआ रहता है. सो हार्ट के बारे में देखें, हार्ट हैज़ चेम्बर्ड स्ट्रक्चर. हार्ट में बहुत सारे चेम्बर्स हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ चेम्बर्स मौजूद हैं. व्हाट डज दिस चेम्बर्स डू? मतलब कुछ जगह मौजूद है, कुछ स्पेसेस मौजूद है. क्या करते हैं ये चेम्बर्स? ये मेनली ब्लड की मिक्सिंग को कम रोक देते हैं. जो ब्लड का जो मिक्सिंग प्रोसेस होता है ना, वो बंद कर देते हैं. राइट, क्योंकि ब्लड अगर मिक्स हो जाएगा देन इट विल बी क्रिएट मोर इश्यूज. तो ब्लड की मिक्सिंग को रोकने के लिए डिफरेंट चेम्बर्स मौजूद हैं. मेनली देर आर 4 चेम्बर्स. टोटली देर आर 4 चेम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट. दूसरे ऑर्गेनिजम्स के केस में, कुछ ऑर्गेनिजम्स के केसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स के केस में 2 चेम्बर्स मौजूद हैं, कुछ के केस में 3 चेम्बर्स हैं, कुछ के केस में 4 चेम्बर्स हैं, लेकिन कम्प्लीटली डेवलप्ड 4 चेम्बर्स नहीं. 4 से ज़्यादा चेम्बर्स वाले उतने पाए नहीं गए हैं, अब आने वाले ज़माने में पाए जाएंगे कि नहीं पता नहीं. अप टू 4 चेम्बर्स सबसे डेवलप्ड है, जो हमारे केस में, मैमल्स के केस में ज़्यादातर. और 4 चेम्बर वाला है वैसे, क्रोकोडाइल भी 4 चेम्बर वाला है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं. ओके, एनीवेज, देयर आर 4 चेम्बर्स इन आवर हार्ट. 4 चेम्बर्स. अपर साइड ऑफ हार्ट, जो ऊपर वाला चेम्बर है, ये जो ऊपर वाला चेम्बर है उसे एट्रियम कहते हैं. एट्रियम सिंगुलर है, एट्रियम प्लूरल होता है एट्रिया. ATRI ए आएगा, वो प्लूरल होगा. ये सिंगुलर है एट्रियम. ये ऊपर वाला चेम्बर एट्रियम. नीचे वाला चेम्बर होता है वेंट्रिकल. ओके, ऊपर वाला चेम्बर होता है एट्रियम, नीचे वाला चेम्बर होता है वेंट्रिकल. ओके,
ये जो एट्रियम होते हैं ऊपर वाले चेम्बर, ये रिसीविंग चेम्बर होता है, मतलब ये या तो डिफरेंट पार्ट्स से ब्लड को रिसीव करते हैं, इधर दे रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स और दे रिसीव द प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स। वो कैसे हैं देखेंगे। वेंट्रिकल्स आर ऑफ आर द सेंडर चेम्बर्स, मतलब ये सेंड करने में मदद करते हैं वेंट्रिकल्स, राइट। 4 चेम्बर्स मौजूद हैं। Suppose this is the right side of our heart, so we will say it as right atrium, upper chamber, right ventricle, lower chamber, है ना। ऊपर वाला राइट एट्रियम, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। सो देर आर 4 चेम्बर्स इन टोटल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चेम्बर्स मौजूद हैं हमारे ह्यूमन हार्ट में। नाउ हाउ डज द पंपिंग एक्शन टेक्स प्लेस, देखते हैं। I think you can see this black arrows and you can also see the red arrows, red colored arrows, right। देखते हैं हमारे खून को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पार्ट से लाने का जो जिम्मेदारी या फिर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो डिफरेंट ब्लड वेसल्स के रहते हैं। उस ब्लड वेसल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देर आर मेनली 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, वन इज आर्टरी, अनदर इज वेन, थर्ड वन इज कैपिलरी। आर्टरीज शुद्ध खून को ले जाने में मदद करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्ड विथ ऑक्सीजन, कुछ भी कहो, प्योर ब्लड, इसको ले जाने में आर्टरी मदद करता है। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड, इसको हार्ट तक लाने में मदद करता है वेन्स। ठीक है, आर्टरी प्योर ब्लड ले जाना, वेन्स इम्प्योर ब्लड लाना। अब बहुत सारे ब्लड वेसल्स तो होंगे ही होंगे, एक दो तो होंगे नहीं। तो ये क्या करेंगे, ये जो बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं जो भी हैं, ये एक्चुअली हमारे ब्लड को, मतलब हमारे शरीर में ब्लड को लाने में मदद करेंगे, है ना। बहुत सारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो उनको लाने में मदद करेंगे। सो सपोज हमारे डिफरेंट पार्ट से लाए हुए ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का जो जिम्मेदारी है, हार्ट के अंदर लाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो थोड़े मसल जैसे स्ट्रक्चर्स के हैं, दैट इज़ वीना कैवा। वीना कैवा हार्ट के ऊपर भी है, वीना कैवा हार्ट के नीचे भी है, राइट। अब हार्ट के अंदर ला दिया, हार्ट के अंदर ये कहाँ पर आएगा, सबसे पहले इट विल कम इन द राइट एट्रियम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, अब मैंने आपको बता दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन की कमी है जिसमें, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है, दैट इज नॉन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इम्प्योर ब्लड ही समझ लो। इम्प्योर ब्लड गेट्स इन राइट एट्रियम, इसको कॉन्ट्रैक्शन होगा वहाँ पर, मतलब ये हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये प्रोसेस करता रहता है ना। लब डब साउंड आती रहती है, वो दैट इज बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन रेगुलरली होने की वजह से। 72 टाइम्स एक मिनट में हमारा हार्ट बीट होता है, दैट 72 टाइम्स जो रहता है ना, उसमें आप सुन सकते हो 1 2 3 4, ऐसे 2 साउंड के बाद आप एक हार्ट बीट को काउंट करते हो, है ना। तो वो जो 2 साउंड है ना, 1 2 1 2, वो जो 2 साउंड है वो एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्शन का है, एक रिलैक्सेशन का है। तो पहले हार्ट सपोज राइट एट्रियम में आ गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये जो मसल्स वगैरह है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इम्प्योर ब्लड को ये राइट वेंट्रिकल की तरफ ले जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में जैसे ही ये रिलैक्स होने लगेगा, ये इस ब्लड को रेलने के बाद इसको अगले कॉन्ट्रैक्शन के बाद, जैसे ही अगला कॉन्ट्रैक्शन इसमें आएगा, ये इस ब्लड को ले जाएगा इनटू द लंग्स। ये जो ऊपर वाली ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस साइड भी आपके लंग्स मौजूद है, यहाँ से भी आप देख सकते हो इस साइड में भी आपके लंग्स मौजूद है, मतलब दोनों साइड के लंग्स में ये ब्लड को ले जाने में मदद करते हैं विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी मैंने आपको बताया प्योर ब्लड ले जाने में मदद करता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी का? पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ ले जाने में मदद करता है। इसके बारे में आगे आपको डिटेल में बता देंगे, इतना आप समझ लीजिएगा। पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड ले जाता है इनटू द लंग्स। अब राइट वेंट्रिकल से खून चला गया इनटू पल्मोनरी आर्टरी, इनटू द हार्ट चला गया। हार्ट के अंदर जाने के बाद प्योरिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा, लंग्स गिव्स आउट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
इनटू द हार्ट विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन की मदद से वो प्योर ब्लड को हार्ट के अंदर लाएगा, राइट। कहाँ पर लाएगा? पहले सबसे पहले लाएगा लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम कैसे वो नीचे पुश करेगा? लेफ्ट एट्रियम जैसे उसके पास आएगा वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, खून लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ चला जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन हो गया, रिलैक्स होने के बाद ही ये वापस जाएगा। वापस कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल ऊपर की तरफ जाकर, जैसे ही ऊपर चला जाएगा, इस ट्यूब के जरिए, ये जो ट्यूब दिख रहा है आपको, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर, इसके जरिए इट विल पास थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड इट विल गो थ्रू आयोर्टा, AORTA। आयोर्टा के द्वारा ये ब्लड की जो फ्लो है, ये जो ब्लड है वो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाएगा, राइट। एट्रियम वेंट्रिकल की खासियत अगर देखी जाए, वेंट्रिकल्स जो रहते हैं वो ब्लड को पुश कराने में मदद करते हैं। इधर वेंट्रिकल्स पुश इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ आयोर्टा, और वेंट्रिकल्स पुश इनटू द लंग्स। तो मतलब ये एक तरफ से ब्लड को पुश करके दूसरे डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने में मदद करते हैं। सो वेंट्रिकल्स की खासियत ये है कि वेंट्रिकल्स विल हैव मस्कुलर, ये जो मसल टिश्यूज हैं उनके जो मस्कुलर वॉल्स हैं वो थोड़े बड़े रहेंगे। मतलब वेंट्रिकल्स थोड़े से बड़े साइज के रहते हैं इन कंपैरिजन टू एट्रियम। ये आप देख सकते हो क्लियरली, एट्रियम से भी थोड़े बड़े साइज के हैं वेंट्रिकल्स, बिकॉज वेंट्रिकल्स में ब्लड को पुश करके दूसरे पार्ट्स में या फिर लंग्स में पहुंचाने की मदद की जाती है। सो वेंट्रिकल्स have thicker, very much thick muscular tissues in comparison to atriums. Okay, so this is about the pumping of heart. अब यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में ज़रूर जानना होगा। ये जो चीज़ें आपकी दिख रही हैं, दिस लोब्ड स्ट्रक्चर, ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये एक्चुअली वाल्व है। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, दिस आर एक्चुअली वाल्व्स। ये आपकी पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन वैसे भी वाल्व्स भी 2-3 टाइप के होते हैं। बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, सेमी लूनार वाल्व, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ वाल्व्स होते हैं। आपको पढ़ने के लिए नहीं है, मैंने बस नाम बताया है। तो ये जो वाल्व्स होते हैं, व्हाट डज दे डू? कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है खून नीचे जाता है। अब जैसे रिलैक्सेशन होता है तो पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है ना कि जो खून कॉन्ट्रैक्शन के बाद नीचे चला गया वो डायरेक्ट ऊपर भी तो जा सकता है। तो वो जो बैकवर्ड फ्लो है खून का, उसको रोकने के लिए ये वाल्व, बहुत सारे जो वाल्व मौजूद हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाल्व्स हेल्प्स इन द helps to close the or helps to stop the back flow of the blood के बैक फ्लो को स्टॉप करने में ये मदद करता है। ओके, देन होता है सेप्टम। मैंने बताया था जो लेफ्ट साइड, मतलब एट्रियम्स, वेंट्रिकल्स वगैरह है, राइट साइड और लेफ्ट साइड में। अगर आप ध्यान से, अगर आपको समझ में आया हो तो राइट साइड का जो पोर्शन है वो पूरा इम्प्योर ब्लड का है और लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वो पूरा प्योर ब्लड का है। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो ब्लड है, प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ये आपस में मिक्स भी हो सकता है। तो इस मिक्सिंग प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए बीच में एक डिवाइडिंग वॉल रखी है। वाल्व नहीं है, वॉल है, डिवाइडिंग वॉल। इसको सेप्टम के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उसे? सेप्टम। ओके, एक और बार आपको इन नटशेल में बता देते हैं। लेफ्ट राइट एट्रियम में खून आ गया, थ्रू वेना क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, खून चला गया राइट वेंट्रिकल में, रिलैक्स हो गया, खून चला गया पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में। लंग्स में पहुंचने के बाद प्योरिफिकेशन होता है। प्योरिफिकेशन के बाद वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा खून को लेफ्ट एट्रियम पहुंचाया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है, खून अंदर आता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। रिलैक्सेशन के बाद खून को आयोर्टा के द्वारा डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। ओके, यानी कि एक ही टाइम में आप दो प्रोसेसेस यहाँ पर कर रहे हो। सोचो कि मैं अब पूरा हार्ट बीट का प्रोसेस आपको बताऊँ। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इम्प्योर ब्लड यहाँ से भी आएगा, प्योर ब्लड यहाँ से भी आएगा। सोचना, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इम्प्योर ब्लड वेना कैवा से भी आएगा, ऊपर नीचे से भी आएगा, प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन से भी आएगा। आ गया, कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। कब जाएगा? जब ये रिलैक्स होगा। ऐसे रिलैक्स हो गया, खून चला गया यहाँ पर, वापस
रिलैक्स होने के बाद वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो नीचे वाला ब्लड जाएगा अपने अपने पोजीशन में, ये जाएगा इनटू पल्मोनरी आर्टरी, ये जाएगा थ्रू आयोर्टा बाहर की तरफ। अब जैसे ही मैंने सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन किया तब तक ये खून तो चले गए, अब ऊपर की तरफ ब्लड आएंगे। सोचना आप लोग, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से भी ब्लड, यहाँ से भी ब्लड, यहाँ पर पड़े रहेंगे। रिलैक्स हुआ, दोनों ब्लड नीचे की तरफ, वापस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो नीचे के ब्लड है वो अपने अपने जगह पर चले जाएंगे और ऊपर जो ब्लड है वो जहाँ से आने हैं वहाँ से आएंगे। फिर सेकेंड रिलैक्सेशन में ही ये अपने अपनी जगहों पर जाएंगे, राइट। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा, मतलब यहाँ पर दो सर्कुलेशन हो रहा है एक ही टाइम पे, एक इम्प्योर ब्लड को ले जाने का, एक प्योर ब्लड को ले जाने का। इस वजह से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेशन के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो इसके बारे में आगे डिटेल में हम देखेंगे। एक और छोटा सा डायग्राम है आप लोगों के लिए जो आपको बनाना पड़ेगा, मैंने तो इतना बना लिया, अब आप लोग थोड़ा बना लीजिएगा। फिगर 6.11 ये डायग्राम भी इसके साथ बना लेगा, इट विल बी मोर यूजफुल टू यू फॉर अंडरस्टैंडिंग इट। टेक्स्ट बुक में आपको इसके नोट्स इसके ये मिल जाएंगे, मैंने वैसे PDF अटैच करके रखा है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, इसके नोट्स आप लिख लीजिएगा। सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश की है, द सेम वे विच आई हैव taught you, the same way I had wrote the notes also. Try to read out the notes, क्योंकि अगर ये आप एक बार भूल गए, मतलब पढ़ नहीं पाओ, तो फिर बाद में आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। रेगुलरली नोट्स वगैरह पढ़ते रहिएगा, इट विल बी very much easy for you in the future, right? So that's all about today's class. We will discuss more in detail about the topics related to this. blood vessels के बारे में पढ़ना है हमें, वैसे आगे वाले टॉपिक्स में ब्लड वेसल है, एक स्पेशल टाइप ऑफ वेसल है लिम्फ वेसल, उसके बारे में पढ़ना है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो भी आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। सो this is all about today's class. So let's wind up that class today. I hope you enjoyed it. Notes वगैरह आपको PDF अटैच मिलेंगे, just write down it regularly and stay safe at your homes. Thank you and have a nice day.